Now student, we will continue exercise 7.2 remaining questions. Now see question number 2. If we have to show that triangle ART congruent to triangle PEN, see here diagram, triangle ART and PEN by the condition of side, then which corresponding side is equal to given side? Given side is AR. See AR. So corresponding side will be P RT. RT is base. So EN will be corresponding side. AT. AT PN. If you superimpose triangle on ART, then you will see that this side correspond to this side correspond to this side, and base is correspond to base. Similarly, in same diagram, if you want to prove the triangle congruent by using side angle side, condition, then angle is given in the question RT equal to EN, and second side AT equal to PN, AT correspond to PN. Angle which one given? RT EN or AT PN. Angle N and angle T are given equal. So by side angle side condition, both the triangle will be congruent. Now in same diagram, if we want to use angle side angle condition, side is given, we have to show the angle. So angle A and angle N, RAN equal to angle EPN, RAN equal to EPN, angle A और P equal, और RTN equal to ENP, angle T and angle N, it means side is given AT equal to PN. So angle side, so angle RAT EPN, angle A and angle P, and angle T and angle N, this one. So when we use angle side angle condition, we have to see that this angle and this angle should be equal, and this angle and this angle should be equal. Now in question number 3, one diagram is given and corresponding equal parts are also given. We have to supply a reason here why we are writing this one. We are writing PM is equal to QM. Why? Because it is given PM is equal to QM. यहाँ पर ये दिया हुआ है कि PM और QM इक्वल है, तो हमने यहाँ रीजन लिख दिया, ये गिवन है. एंगल PMA इज इक्वल टू QMA, PMA इज इक्वल टू QMA, ये आजू बाजू के एंगल भी इक्वल दिए हुए, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, गिवन. AM इक्वल टू AM, ये ट्राइंगल के लिए भी साइड AM है और ये ट्राइंगल के लिए साइड भी AM है. ये साइड कैसी हो गई, कॉमन, तो यहाँ लिख देंगे कॉमन साइड. ये तीनों रीजन हमने लिख दिए. फिर चौथा पॉइंट हमको दिया है ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMQ. ये दोनों ट्राइंगल AMP और AMQ कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय विच रीजन, बाय साइड एंगल साइड रीजन. देखो ये साइड और साइड एंगल साइड ये हमको इक्वल दिया हुआ, तो बाय साइड एंगल साइड कंडीशन दिस ट्राइंगल विल बी
कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ केवल फिल इन द ब्लैंक टाइप का है, अपने को जो पूछा है वो लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, one condition is given that if two triangle has corresponding angle are equal, then triangles are congruent or not. Then we will write the answer, angle condition does not exist. Now why angle condition does not exist? See here, यदि मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूँ, ये इतना बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल होते, और मैंने ये इतना सा इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, इसके भी तीनों एंगल 60-60 के होंगे, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे। ये इतना छोटा सा ट्राइंगल इसको पूरा पूरा ढक नहीं पाएगा, सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। देयरफॉर angle condition does not exist, and hence by this condition two triangle cannot be congruent. Now in question number 5th, in question number 5th, in this diagram triangle RAT and this triangle is given. We have to write down RAT के congruent triangle ये है, तो कौन सी कंडीशन से हम इसको लिखेंगे? तो हम यहाँ पर देखो जो दिया हुआ है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये देखो ये डबल निशान है, ये साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और इनके बीच का एंगल ये देखो ये इक्वल दिया हुआ है। इट मीन्स WO, यहाँ से क्या आ रहा है RA, तो WO और N ये वाली साइड, तो WON यहाँ पे ट्राइंगल का नाम उठेगा, ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल WON। मैंने आपको बताया था कि वर्टेक्स से वर्टेक्स अपन मिलाते हैं, जैसे यहाँ पे वर्टेक्स R लिया अपन ने, तो इसका भी वर्टेक्स W, इसको अपन पलटा के ऐसा लिख देंगे तो W हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन कौन सी हो रही है? साइड एंगल साइड। यहाँ पर ये वाला एंगल भी इक्वल दिया हुआ है, लेकिन हमको दो इक्वल साइड के बीच का एंगल इक्वल आ रहा है, उस ट्राइंगल का नेमिंग ऐसा करना। और नेमिंग ऐसा भी हो सकता है NOW या DON, लेकिन जहाँ पर हमारी कंडीशन आ रही है वहाँ से हमको स्टार्ट लेना है, तो WON, ट्राइंगल WON will be congruent to triangle RAT. Now question number 6th. In question number 6, diagram is given and we have to supply the triangle's name. So triangle BCA will be congruent to triangle BTA. Triangle BCA congruent to triangle BTA. And in second diagram, triangle QRS will be congruent to triangle TPQ. Triangle QRS will be congruent to triangle TPQ. तो यहाँ भी सेम 5th जैसा ही है, आपको डायग्राम देखकर उसमें आंसर लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is activity. You try the activity and find out the facts. ये एक्टिविटी आपको कागज पे बनाकर देखना है। Now in question number 8,
in this condition. Triangle ABC and triangle PQR. This angle is given 90, this angle is given 90, this angle equal, this angle equal. अभी हमको एक कंडीशन और लेना है अपने मन से जिससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो अभी देखो आपको यहाँ पर ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल दोनों बराबर है, ये एंगल और ये एंगल, अगर ये इस ट्रायंगल में ऐसा खड़ा कर दूँ तो ये एंगल इसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, ये एंगल इसके करस्पॉन्ड, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर मैं इक्वल ले लेता हूँ, ये साइड और ये साइड इक्वल ले लेता हूँ, तो ये ट्रायंगल एंगल साइड एंगल कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हमको साइड कौन सी लेना है, बी सी इजिकल टू क्यू आर, बी सी इजिकल टू क्यू आर, ये कंडीशन, ये साइड हम ले लेते हैं। तो एंगल साइड एंगल कंडीशन से बोथ द ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो हमको केवल इतना ही बताना है कि इस फिगर में कौन सी एक कंडीशन हम ले लें तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कंडीशन होगी साइड बी सी इजिकल टू क्यू आर, ये वन पॉइंट हम ले लेते हैं तो ये ट्रायंगल एंगल साइड एंगल कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED। और ये अपने को दो डायग्राम दिए हुए हैं, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं और दोनों एंगल के अलग हट के साइड इक्वल दी हुई, एक साइड इक्वल दी हुई। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर होंगे तो क्यों होंगे, ये रीज़न भी हमको देना है। तो हमारा आंसर है ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED बाय एंगल साइड एंगल कंडीशन। अब देखो मैं लिख रहा हूँ एंगल साइड एंगल कंडीशन, एंगल, अब साइड तो बाहर है जबकि इंक्लूडेड साइड आना चाहिए, है ना, एंगल साइड एंगल कंडीशन। तो इसके लिए हमने रीजन लिखा है, बिकॉज इफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो ये जो थर्ड बचा एंगल है, ये थर्ड बचा एंगल भी इक्वल होगा। वाई, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सपोज ये अपने को 90 ये तो दिए हुआ, सपोज ये 30 दिया है, ये वाला एंगल 30 दिया है, तो 90 प्लस 30 120, तो ये एंगल कितने का होगा, 60 का, ये एंगल भी कितने का होगा, 60 का। तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल इक्वल बता दिया, है ना, ये वाला एंगल इक्वल बता दिया। आप देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और इसकी बीच की इंक्लूडेड साइड भी इक्वल आ गई। तो ये एंगल साइड एंगल कंडीशन यहाँ पर हमने इस प्रकार से लगाई। तो यहाँ पर रीजन लिखना जरूरी है, बिकॉज इफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल आल्सो इक्वल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये एक सब कंडीशन बन जाती है, एंगल एंगल साइड कंडीशन। इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा, लेकिन अभी आपको ये रीजन से बता देना है कि जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से इक्वल हो जाएगा, और देयरफॉर फिर एंगल साइड एंगल कंडीशन लगकर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। So exercise 7.2 is complete now, and this chapter complete. Now in the next lecture we will discuss new chapter. Thank you.